Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is about the structure of pollen grain. किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? Structure of pollen grain के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इससे previous videos में हमने देखा कि pollen grain बनते कहाँ पर हैं? Under the topic microsporogenesis. किसके अंदर देखा? Microsporogenesis के अंदर हमने देखा. आज हम स्टडी करेंगे structure of pollen grain की, structure of pollen grain, as well as we will study the development of the male gametophyte. ठीक है? So here you can see the beautiful pictures or images of the pollen grains of the different species, right? So these are all real pollen grains. इनको देखकर आपको महसूस होगा how beautiful they are. ऐसा लगता है कि नेचर ने उनको बिल्कुल गढ़ के बनाया है, मूर्ति की तरह बनाया है. They are highly beautiful, right? They are resistant also. They are very strong and they can face the adverse conditions in nature, right? So here we are going to begin with the study of pollen grain and its structure. Now we talk about the branch of the biology that deals with the study of pollen grains, that is called as palynology. What we call that? Palynology. Here logy means study and palyno word stands for pollen grain. So palynology is the branch of biology that deals with the study of pollen grains, that deals with the study of pollen ग्रेन्स. ये भी डिफरेंट तरीके की हो सकती है, ठीक है? ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. मुझे नहीं लगता इतना आगे इस नॉलेज का यूज 12th स्टैंडर्ड पर होता है, बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए. जैसे मैं लिखता हूं यहां पर जियोपेलिनोलॉजी समझने की कोशिश करें आप. जियोपेलिनोलॉजी क्या चीज हो सकती है? देखिए, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, आप जानते हैं. पेलिनो मीन्स पोलन ग्रेन एंड जियो मीन्स अर्थ होता है, राइट? Here geo means earth. So what is the meaning of geopalinology? The study of pollen grains found inside the earth, especially this is the fossils study of the pollen grains or the pollen grains which are found inside earth as fossils. उनके अंदर इसको स्टडी किया जाता है. इसके साथ साथ aeropalinology, if I write aeropalinology, now you can understand air, right? The pollen grains which are found in air, they are called as what? This is the branch which studies the pollen grains found in air, right? According to the study of pollen grains, we see that almost pollen grains are found in the air, right? So it becomes a very, very vast branch of the study where pollen grains are studied. Along with that, we have iatropalynology. Iatropalynology. This is a very special branch where we study the criminology, or we study the importance of pollen grains in the criminology, right? So cases are solved with that, with the help of that, right? एक और branch हो सकती है that we call melitology. Melitology. देखिए, मेलिटो वर्ड है किसके लिए? हनी के लिए. हनी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स मिलते हैं उसको मेलिटोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है. सो दीज वर सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी द पोलन ग्रेन्स फाउंड इन द अर्थ एज फॉसिल्स और इन द एयर और इन द क्रिमिनोलॉजी और इन द हनी, राइट? आप समझ सकते हैं हनी के अंदर तो इनका मिलना बहुत जायज है, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं, जो हनी बी होती हैं, इन्हीं को खाती हैं, तो पोलन ग्रेन्स वहां मिल सकते हैं, राइट? तो उनकी स्टडी वहां पर की जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स और अदर स्टडीज टू. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. देखिए, हम क्या करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक स्टेमन के अंदर ही. मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट से है. सो दिस इज द फिलामेंट ऑफ एंथर and this is I'm drawing. This is the anther. This is the anther, right? This is the anther and this is the filament of a stamen. Right? Now just recall, inside the anther there are 4 microsporangia or 1 microsporangium that you call in singular way. So I'm drawing here just to make you clear, क्लियर. आपकी बुक में इस तरह के डायग्राम प्रोबेबली नहीं है जिस तरीके से इस टॉपिक में मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? सो दिस इज 1 microsporangium,
माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें हम माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉलिंग आपको कर देता हूं। दिस इज अ पोलन मदर सेल, पीएमसी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट अंडरगोज मियोसिस, and it forms four microspores. Each PMC or pollen mother cell forms 4 microspores. So right, we take just one. This is the microspore. What is that? This is the microspore. Now this microspore further grow and it turn into the pollen grain. Now I am going to draw the structure of pollen grain. Look, in pollen grain, this is the structure of pollen grain, and it has layers made up of chemicals like we discuss later on within this video. But here I am going to draw the structure of the pollen grain, right? This is the pollen grain with one nucleus only. Remember, this is the pollen grain with one nucleus only. अभी ये पोलन ग्रेन इस एंथर में ही प्रेजेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी ये पोलन ग्रेन इसके अंदर ही मौजूद है और इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है। क्या है? सिर्फ एक न्यूक्लियस है। धीरे धीरे इससे बदलाव होंगे, उन बदलावों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ रहे हैं, राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, हेंस आई स्टॉप दिस हियर, we further move on. Okay, so in the structure of the pollen grain, what structures we find here? A pollen grain has two layers or two walls made up of different chemicals. Like we talk about the external is called as exine. X वर्ड से आपको पता लगता है कि बाहर की चीज है exine, और जो अंदर की तरफ होती है उसको कहते हैं इंटाइन। व्हाट वी कॉल दैट? इंटाइन। जो सबसे बाहर था उसको क्या बोला? एक्साइन। एंड इनर टू द एक्साइन द लेयर कॉल्ड इज इंटाइन, एंड बोथ ऑफ दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। Both of them collectively called as sporoderm. Derm means skin. Derm का मतलब skin. किसकी skin? Spore की skin, right? So there are two layers, exine and intine. Dear, exine consists of sporopollenin. Exine consists of sporopollenin, one of the most hardest substance in nature, which is provided. Sporopollenin is provided by the Ubish bodies. Remember, Ubish bodies को कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है, टेपिटल सेल्स बनाते हैं। Ubish bodies के ऊपर लगा होता है क्या? स्पोरोपोलेनिन, जो कवर करता है किसको? एक पोलन ग्रेन को, राइट। एक पोलन ग्रेन को ये कवर करता है। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, जो उसे प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर से, स्कॉर्चिंग से, पानी से बचाता है। ये किसी भी एंजाइम से डिसॉल्व नहीं होता है, सालों साल पोलन ग्रेन्स पड़े रह सकते हैं। किस तरह से? फॉसिल्स के फॉर्म में, राइट। सो हियर वी स्टडी अबाउट द एक्साइन। इंटाइन कंसिस्ट ऑफ pectocellulose. Look, here are two words, pectin plus cellulose. It consists of pectin plus cellulose. इन दो चीजों का ये बना होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर आप स्टडीज को हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एक्साइन भी फर्दर डिवाइड हो जाती है। इसको आप एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन, नेक्साइन, फुट लेयर, बहुत सारे लेयर्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्ड क्लास 12 का है, हमारा काम इतने से चल जाएगा, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड इनर वन इज कॉल्ड एज इंटाइन। यू कैन सी हियर दैट in this the exine is not uniform all over, right? Somewhere it is lacking, like this one. यहां पर ये छूटे हुए हैं। इसको नेचर ने ऐसा बनाया है क्योंकि आने वाले समय में इसी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना है। देखिए आप नोटिस करिए, मैं पोलन ग्रेन बना रहा हूं जिसमें चारों तरफ मैंने किसको बना दिया है? स्पोरोपोलेन को चारों तरफ बना दिया, एक्साइन को चारों तरफ बना दिया है। आने वाले समय में इसमें से निकलेगी जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब कुछ नहीं होती है, जर्म ट्यूब सिर्फ इंटाइन का एक्सटेंशन है, जर्म ट्यूब इंटाइन का एक्सटेंशन है।
So this is intine, this is intine. Now just imagine if this layer is found all over, it would be very difficult to come out. ये बहुत मुश्किल होगा कि पोलन ट्यूब इसमें से निकल सके। इसलिए नेचर ने इस बात को फैसिलिटेट करने के लिए, पोलन ट्यूब आसानी से निकल सके इसलिए, प्रोट्यूबरेंस निकल सके इंटाइन का इसलिए, बहुत कंफर्ट जोन रहे इसलिए इस एग्जाइन को चारों तरफ कवर नहीं किया है, चारों तरफ कवर नहीं किया है, कुछ जगह पर इसको छोड़ दिया, कुछ जगह पर इसको छोड़ दिया। मतलब उन्होंने इस लेयर को यहां पर नहीं डिपॉजिट किया जिससे इसमें बन सके क्या, जर्म पोर। क्या बन सके, जर्म पोर बन सके, जिनसे फर्दर क्या निकलेगी, जिससे फर्दर निकलेगी पोलन ट्यूब। क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। यहां नहीं निकलती है अंदर, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद वो स्टिग्मा पर निकलती है, लेकिन इसको निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, राइट। सो डू यू गेट द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, वेयर द पोलन ग्रेन इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स मेल गैमेट इनसाइड। यू लुक दिस वीडियो, राइट। मैं बोलता जा रहा हूं, इस वीडियो का थोड़ा सा वॉच करते चलें साथ साथ, जहां आपको ये महसूस होगा कि कैसे इसके लेयर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर है, राइट। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, और इस एक्साइन के नीचे होती है इंटाइन, और इंटाइन के अंदर भी होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ऑल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी फाउंड देयर, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं एज अ फॉसिल ड्यू टू द स्ट्रक्चर, ड्यू टू द केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिन, ओके। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एंजाइम। ये सामान्य बात है, क्लास 12 के हर बच्चे को लगभग ये बात याद हो जाएगी। क्या बात याद नहीं होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा इस बात को भूल सकता है कि ये किसने बनाया है। स्पोरोपोलिन को बनाते कौन है, उबिश्ड बॉडीज बनाते हैं। कौन बनाते हैं, उबिश्ड बॉडीज। उबिश्ड बॉडीज को कौन बनाता है, टेपिटल सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, टेपिटल सेल्स बनाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं। इस स्पोरोपोलिन को कौन बनाता है, उबिश्ड बॉडीज। कौन बनाते हैं, उबिश्ड बॉडीज। उबिश्ड बॉडीज को कौन बनाता है, टेपिटम। कौन बनाता है, टेपिटम। और टेपिटम कहां होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने जो आपसे बात की है वो बात की है एक ऐसे पोलन ग्रेन की जो बना है माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर, और उसके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है। कितना, सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, राइट। और दूसरा टॉपिक क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इनटू द मेल गैमेटोफाइट, इनटू द मेल गैमेटोफाइट। तो मैं इस स्ट्रक्चर को इरेज करके दोबारा से बनाऊंगा, और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये मेल गैमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होती है, ओके। सो यू कैन टेक पिक्चर ऑफ दिस जस्ट टू नोट डाउन इन द डायरी। Now we move on to the development of male gametophyte. Along with that, the structure of male gametophyte कि ये कैसे बनता है, कैसे convert होता है, right dear? So what are the events involved in the development of the male gametophyte? Development of male gametophyte along with its structure we are going to study. Now see, again I draw. What I draw? The stamen. I draw the stamen. So this is the filament of stamen. बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है, right? And this is the anther. This is the anther where we are going to study all the structures inside. और यहाँ पर आपको पता ही है ये कौन है, ये इसके माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। वैसे आप इतना इशारे में समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये इसके माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। मैं जिस इवेंट को यहां से यहां तक लेकर जाऊंगा वो चारों के अंदर चल रहा है, अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चल रहा है। हम सिर्फ एक में देखेंगे, ठीक है। नाउ यू सी लुक क्या होता है। मैं इसको भी रेज कर देता हूं जिससे आप समझ सके अच्छे से, राइट। हम बस इसके अंदर रहेंगे, अब आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको पता नहीं है ये बात। देखिए क्या होता है। नाउ यू सी दिस इज द पोलन ग्रेन विद वन न्यूक्लियस एंड दिस इज द एक्साइन ओवर इट, राइट। अगले स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये मियोसिस से होकर आया और ये हैप्लॉइड है। कैसा है, हैप्लॉइड है। इसके अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। आप जानते हैं माइटोसिस में क्या होता है, वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, ओके, हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर। अगले स्टेप में जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी
उस स्ट्रक्चर में हमारे सामने दो न्यूक्लियस होंगे, वन लार्जर वन स्मॉलर, वेयर दिस इज कॉल्ड एज generative nucleus and this is called as vegetative nucleus. After that there will be formation of cell wall and we find two cells, one larger cell and one smaller cell. The bigger cell is called as vegetative cell and this is called as generative cell. इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, right? Now look, these are the changes which are going to facilitate ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे ये जो जनरेटिव सेल है इसका वॉल कंप्लीट होने लगता है और ये इस वॉल के इस किनारे को छोड़ देती है और अलग फ्लॉट करने लगती है। क्या करने लगती है? अलग से फ्लॉट करने लगती है, राइट? सो अगले स्टेज में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन के ऊपर ये एक्साइन आ गई, ये एक्साइन आ गई, नॉट यूनिफॉर्मली फॉर्म्ड, एज यू नो व्हाट इज दिस, germ pore, and after that you find a bigger cell that you call vegetative cell, और इसके अंदर यहां पर फ्लॉट करने लग जाती है जनरेटिव सेल, या आप जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, ये जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या है, देखिए ये है बाइसेल्ड पोलन ग्रेन, दुनिया में जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस बाइसेल्ड स्टेज पर ही पोलन ग्रेन्स लिबरेट होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंथर में से लिबरेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द dehiscence of the pollen grain, dehiscence of the anther में क्या होता है, आप जानते हैं यहां पर लेयर्स हैं, तो ये क्या है, एंडोथीसियम। ये क्या चीज है बेटा, एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम के अंदर जो फाइब्रस लेयर्स जो हैं वो सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। इससे जो स्टोमियम है वो खुल जाता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत जिक्र किया इस बात का, स्टोमियम खुल जाता है और जैसे इसका माउथ खुलता है ये पोलन ग्रेन्स यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन जो बाहर आते हैं वो बाइसेल्ड स्टेज पर होते हैं, जनरली रेयरली इट इज ट्राई न्यूक्लियस स्टेज, बट जनरली आपको ये सीन देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द liberated pollen grain and ready to pollinate, यही स्टिग्मा पर पहुंचेगा और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद इसमें जो चीज होगी वो हम इसके राइट आफ्टर देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये बाइसेल्ड मेल गेमेटोफाइट ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल बात आपसे करता हूं तो मेल गेमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें पोलन ट्यूब बनने लगती है, ठीक है। अब वो पोलन ट्यूब जनरली स्टिग्मा के ऊपर ही बनती है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को बना रहा हूं जहां पर हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि स्टिग्मा के ऊपर उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। टिल देन वी डिस्कस, you see this picture where we see the development of the male gametophyte from one nucleus to two nucleus and the coming out of the pollen tube। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। अभी और भी कुछ होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक न्यूक्लियस जो बना था, मतलब जो माइक्रोस्पोर में था, मतलब जो पोलन ग्रेन में था, that was haploid in nature। जिस पोलन ग्रेन के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, इट अंडरवेंट माइटोसिस एंड इट टर्न इनटू टू न्यूक्लियाई, one vegetative and one generative, and also two cells, one larger cell and one smaller cell। You got it? Now you see what happened over stigma। स्टिग्मा के ऊपर देखिए क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये।
तो मैं बनाता हूं, हालांकि अगले स्टेप में भी ये आएगा। तो देखिए क्या होगा बेटा, ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल और ये हो गई ओवरी। ठीक है, इन सब के बारे में बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही हमको देखना है। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। राइट, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ने रीच किया, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज एक्साइन, एक्साइन, this is intine, this is vegetative nucleus, and this is generative nucleus, generative nucleus, right? This is haploid, this is also haploid. Okay, now you see what is going to happen. This is going to germinate. ये पहले भी हो सकता है, हम इसको स्टिग्मा पर देख रहे हैं। तो यहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, this is the pollen tube, which is the extension of intine, in fact, right? Now what will happen, this vegetative nucleus will shift down and will reach here. This is vegetative nucleus, correct? इस स्टेज पर भी आप इसको मेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग व्यूज हैं, लोग इसको 2 न्यूक्लिएट स्टेज पर मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको 3 न्यूक्लिएट स्टेज पर मानते हैं, बट अगर पेपर में आ जाए तो बाय न्यूक्लिएट गेमेटोफाइट पर आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस जनरेटिव न्यूक्लियस विल अगेन एंटर इनटू माइटोसिस, दिस विल अगेन एंटर इनटू माइटोसिस। आप जानते हैं क्या होगा, दिस सिंगल न्यूक्लियस विल टर्न इनटू 2 न्यूक्लियाई, this will be haploid, this will be haploid, and of course this is also haploid in nature. ये वाला जो जनरेटिव न्यूक्लियस था ये चला गया किसमें, माइटोसिस में, और इसमें 2 न्यूक्लियाई बना लिए। अब हमारे पास ये यहां से डिसअपियर हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास 2 मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहेंगे, मेल गेमेटोफाइट। दिस इज मेल गेमेटोफाइट, right? Male gametophyte. So in this video we discussed about the structure of pollen grain, branch of the biology which study about the pollen grain. Now and then after we talked about the development of male gametophyte. Now we talk about some important aspects like smallest pollen grain. ठीक है, smallest pollen grain होता है myosotis का, this is the smallest pollen grain of the myosotis. ठीक है, largest pollen grain हमको देखने को मिल सकते हैं कुकरबिटेसी फैमिली में, मिराबिलिस का pollen grain भी largest होता है, you can see that. longest pollen grain होता है जोस्टेरा का, longest pollen grain किसका होता है, जोस्टेरा का होता है। ठीक है, सो ये बात मैंने आपको बताई, क्या बताई मैंने आपको बात, जो smallest pollen grain है वो किसका है, myosotis का है। sometimes this question is asked in NEET. okay, so myosotis, this is the smallest pollen grain, then after if we talk about the larger ones, so the largest pollen grain is found in cucurbitaceae, cucumber, ककड़ी वगैरह जिसमें आते हैं, cucurbitaceae में आपको मिल जाएंगे, ये आपको मिराबिलिस में भी मिल जाएगा, मिराबिलिस में भी आपको ये मिल जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट वंस की बात करें तो यू विल फाइंड देम इन जोस्टेरा, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट द स्मॉलेस्ट एंड देन लार्जेस्ट एंड देन लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अनवांटेड प्लांट ग्रो करता है, इट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम समवेयर, पार्थेनियम, दैट वी कॉल पार्थेनियम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरेट ग्रास, व्हाट वी कॉल दैट, कैरेट ग्रास। तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इससे एक एलर्जी हो जाती है, दैट वी कॉल हे फीवर, व्हाट वी कॉल देम, हे फीवर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द male gametophyte, pollen grain, smallest, largest pollen grains,
and the allergy caused by the pollen grains called hay fever. आप अपने घरों के आसपास देखिएगा ये कैरेट ग्रास बहुत ग्रो कर जाती है, जहाँ पर नाले होते हैं, जिन पार्क्स की अच्छे से सफाई नहीं होती है, छोटे छोटे सफेद फूल इसके अंदर आते हैं, व्हाइट फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं. दिस इज हाईली infectious, in fact I can say where they cause damage to the person may suffer from the asthma as well. अस्थमा भी इससे एलर्जी के में कन्वर्जन इसका देखने को मिलता है. Okay dear, so this was all for today and we will study then after the female reproductive structure of the flower in the further video. खुश रहें, पढ़ते रहिए. Thank you.